Okay, let's begin. We have more people who have joined in. Okay, so we'll start with knife base. हमने last class में start किया था, but very few people were there and okay. So let's start. Is everyone having this PPT? Hanji, is everyone having this PPT? So we started off with knife base. I'll just, I started from the beginning. Because last class we did not complete and something went wrong. I was trying to solve a problem. So results proper nahi aa rahe the. So I'll start over again today. So knife based classifier, is classifier hai, cannot be used for regression problem. It is a classifier, supervised learning के लिए use करते हैं, probability based पे काम करता है. Like probability of any event to happen, yeah, this is the formula. This one, the probability of an event to happen multiplied by that class probability defined by my outcome चाहिए उसकी total probability क्या है. So we were discussing this example here that this is a data frame जहाँ पे हमारे पास outlook का column है, temperature है, humidity है, windy है, and इनके basis पे हमें define करना है या identify करना है कि whether the person will play golf or not. ठीक है, तो outlook, temperature, humidity and windy are our features and play golf हमारा क्या है, target column, dependent column, and these are all independent columns. So we have to identify using knife base. Okay, so knife base में last class में मैंने बताया था this is a probability algorithm. तो हर instance की probability was calculated out. So these are the columns, outlook था, humidity, temperature and windy. उनके respective में whether the person has played golf and person has not played golf. तो आउटलुक में हमारे 3 यूनिक इंस्टांसेस थे, सनी, ओवरकास्ट एंड रेनी. ह्यूमिडिटी में 2 थे, टेम्परेचर में 3, हॉट, माइल्ड एंड कूल. विंडी में 2 थे. सो उनके रिस्पेक्टिव में लाइक व्हेन आउटलुक वाज सनी तो हमारे पास प्लेइंग गोल्फ के कितने इंस्टांसेस थे, दे वर 3. एंड व्हेन आउटलुक वाज सनी प्लेइंग गोल्फ के इंस्टांसेस थे 2. सिमिलरली हर यूनिक वैल्यू के when the person is playing golf and golf is not played, दोनों के लिए instances हमारे लिए we have the instances are taken out कि when the temperature was hot तो उतने उस time पे 2 times golf was played and 2 times golf was not played. So equivalent है when it was not windy तो 6 times golf was played and 2 times golf was not played. Okay, so these are the instances count. ठीक है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये हमने लास्ट क्लास में भी अच्छे से कवर किए थे. इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को व्हाट दिस इंस्टांसेस आर एंड हाउ दे आर कैलकुलेटेड दीज इंस्टांसेस? इनमें कोई कंफ्यूजन है लेफ्ट साइड? ओके, देन राइट साइड दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी स्कोर नहीं कैलकुलेट किया हुआ, जस्ट पुट अप किया हुआ है कि टोटल इंस्टांसेस हमारे प्लेइंग गोल्फ के लाइक व्हेन द यस इट वो वी हैड 9 इंस्टांसेस कि जहां पे पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, और नो के हमारे पास टोटल इंस्टांसेस है 5 इन आवर कंप्लीट डेटा. तो उस टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू सनी एंड गोल्फ इज प्लेड हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/9 एंड व्हेन इट इज सनी एंड गोल्फ इज नॉट प्लेड हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/5. सिमिलरली व्हेन इट वाज ह्यूमिड और golf was played the probability comes out to be 3/9 क्योंकि इंस्टांसेस हमारे 3 हैं and total golf played कितने टाइम्स अकर हुआ है 9, so 3/9. and when it was humid and golf was not played so 4/5. जब ज्यादा humid था people did not prefer to play golf, ठीक है, so it came out to be 4/5. similarly हर इंस्टांसेस के लिए like for sunny for each individual instance probability is calculated divided by total outcome. 9 is the total outcome कि जितनी बार golf play हुआ है.
5 इज द टोटल आउटकम जितनी बार गोल्फ प्ले नहीं हुआ है. दिस इज फॉर टेम्परेचर एंड विंडी. सो हर कॉलम के लिए प्रोबेबिलिटी, जब इनको व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट अ प्रोबेबिलिटी स्कोर. So a probability score is computed here. Like they are put up into the formula, and when you move to the next slide, values can be calculated. But इसमें कोई confusion है. When you divide them, you get the probability score. So इसमें इस slide में कोई confusion नहीं है here कि how we have done this. What is going on here? Probabilities में any confusion? ठीक है. So next was the we picked up one topic कि we had to find out कि when it is sunny तो हमारा what is the probability that the person will play golf. तो हमने क्या निकाला था? We took out the instances of sunny with playing golf and not playing golf. तो with playing golf we had three instances. एक सेकेंड, लेट मी, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड ऑन करूंगी ना, I'll lose all these go to meeting. So इसलिए I'm just showing like this only. ऐसे this I'm having a go to meeting window that is covering up my screen. Okay. So here playing golf 3 times, when sunny not playing golf 2 times. तो हमने हर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई. सो हमारा क्वेश्चन था कि when it is sunny the person has played golf. तो हमारा क्या फॉर्मूला था इनिशियली? So here when we move up here, probability of playing golf when sunny into probability of sunny playing golf, that is yes, divided by probability of sunny. So when we put up this into the formula, तो हमारा क्या रिजल्ट आता है? That is, this is probability when it was sunny and person has played golf. So 3/9 आ गया, 0.33. Only sunny की probability क्या थी? Whether the person has played golf or not, independent of that. Total instances कितने हैं मेरे sunny के? 5 है, 3 + 2. और टोटल हमारे डेटा सेट में कितने इंस्टांसेस हैं? 14. तो सनी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/14. सो ओनली प्लेइंग गोल्फ, सॉरी व्हेन इट इज ओनली सनी, इंडिपेंडेंट की गोल्फ प्ले किया है नहीं किया है, सनी की प्रोबेबिलिटी है 3.36. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ वेदर बीट सनी, ओवरकास्ट और रेनी बीट एनीथिंग. तो टोटल हमारे यस के इंस्टांसेस थे 9. टोटल डेटा सेट में कितने इंस्टांसेस है? 14. तो ओनली प्लेइंग गोल्फ, be it anything but only playing golf की हमारी probability है 0.64. So we have to find out कि when it was sunny and the person has played golf. तो हमने क्या किया है? This is the probability that when it was sunny and the person has played golf. ये मेरी यहाँ से आ गई 0.33 into हमने क्या बोला है? When it was sunny and person played golf. So we have yes here. तो हमें yes की probability we have to multiply with yes. बिकॉज एक तरह से सिंपल याद करने का तरीका कि कहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी. जैसे हम क्या निकाल रहे हैं? सनी डिवाइड बाय यस कि हमारा व्हेन इट वाज सनी एंड पर्सन हैज प्लेड गोल्फ. तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, दिस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इंडिपेंडेंट ऑफ सनी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर प्लेड गोल्फ और नॉट. तो यहाँ पे s/y क्या है मेरा? 0.33 मल्टीप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की गोल्फ प्ले किया है बीट एनी वेदर, तो वो क्या थी? 0.64. दिस इज कम फ्रॉम हियर. देन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सनी, जो मेरी ऐसी की गोल्फ प्ले हुआ नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट सनी की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. सो दैट इज डिवाइडेड 0.36. तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आई? दैट when it is sunny and person is playing golf. So 0.60. Similarly, the same thing is calculated that when it is not sunny, when it is sunny and the person is not playing golf. तो जो हमने यहाँ पे yes के लिए कैलकुलेट किया, वो हमने no के लिए कैलकुलेट किया है यहाँ पे. So no के इंस्टांसेस कितने थे टोटल? हमने यहाँ पे 3/9 किया क्योंकि 9 के yes के इंस्टांसेस थे 9. यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास no के इंस्टांसेस कितने हैं? 5. ठीक है. और हमारे पास दो इंस्टांसेस है जहाँ पे इट वाज सनी
and person did not play golf. So 2/5 probability आ गई that जब sunny था and person did not play golf 0.40. ये सेम रहेगी, probability of sunny will not change because ये independent है whether golf is played or not. Then यहाँ पे क्योंकि we have to figure out कि when it was sunny and person has played golf, तो हमने yes की independent probability निकाली थी. Now हमें यहाँ निकालना है when it was sunny and person has not played golf, तो हमें no की independent probability निकालनी है, right? So 5 is the total occurrences of no, 14 मेरे total data points हैं, so this is my probability of independent not playing golf. So we have put up this into formula again. It was sunny, person has not played golf, जो मेरी यहाँ से आई है. Then multiplied by, क्योंकि not played golf है, no के साथ हमें निकालना है, right? तो multiplied by probability of no, total probability of no, that is 0.36, यहाँ से आ गई. Divided by, divide here, total probability of sunny, क्योंकि हम sunny के with respect में निकाल रहे हैं. So this is the probability when the person did not play golf when it was sunny. So हमारी दो probability निकल के आ गई, एक तो ये एंड दूसरी है मेरी 0.40. So in case में naive Bayes will give the result जो probability maximum होगी. Here हमारी probability 0.60 है. So the naive Bayes will give me the result as the person will play golf if it is a sunny. तो हमारा output क्या होगा, whether golf is played or not, it will be a yes. क्योंकि yes की probability क्या है, 0.60. It is more. You can change the threshold. इसमें इस पे गया कि जो मैक्सिमम है उसको आउटपुट दे दिया. इफ you can redefine the threshold कि अगर if the value is more than 70 या if the value is more than 80, probability score more than 80 हो 70 हो, then only it can come out to be yes. You can tweak those values, but by default naive Bayes में जो probability score exceed करेगा या lead करेगा, that will come out to be as my output of that with respect to a certain situation. So this is leading here that when it was sunny, person has played golf. So this will be my out because this is 0.60 greater than 0.40 जो मेरी value आई है when it was sunny and person did not play golf. So इसमें कोई confusion किसी को कि how this probability scores are calculated both 0.60 and 0.40? Is anyone having any confusion? Okay, so next हमने last class में था हमारा कि if these are my conditions, that whether it is rainy, जब हमारा when it is rainy, when it is hot, when it is rainy, it is hot, temperature is also high, and it is not windy. So what will be the probability that the person will play golf or not? उसमें क्या output आएगा? So उस case के लिए this was a question where we stopped last class. So इसके लिए I have used a Jupyter notebook जिसमें I'm just calculating instead of Excel. Let me take you to that. हाँ जी, these are all कार्तिक, ये हम सभी कंडीशन एक साथ ले रहे हैं. जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ सनी का लिया ना, क्योंकि अभी तो इसमें सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं ओनली वन कॉलम कि सनी के साथ क्या प्रोबेबिलिटी है. लेकिन आइडियल सिनेरियोज में क्या होता है, जब हमारा डेटा सेट होता है उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और मल्टीपल कॉलम्स में सभी वैल्यूज कंसिडर होंगी. तो रेनी हमारे पास 4 कॉलम है, हमारे पास कौन कौन सा है, आउटलुक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंडी, राइट. तो मैंने इन चारों में से इंस्टांस लिया है कि जब मेरा आउटलुक क्या है, रेनी, व्हेन माय आउटलुक इज रेनी, आई हैव टेकन दिस कि जब मेरा आउटलुक इज रेनी, ह्यूमिडिटी इज हाई एंड टेम्परेचर इज हॉट एंड इट इज नॉट विंडी. तो इन चार, जब ये मेरे चारों इनपुट होंगे तो इनके बेसिस पे whether the person will play golf or not. आइडियल सिनेरियो में एमएल में तो यही होता है ना कि मल्टीपल थिंग्स गिवन होती है, उनके रिस्पेक्ट में एक टारगेट निकालना होता है. अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक सनी के लिए कैलकुलेट किया था. नाउ गिवन आइडियल इनपुट कि ये सभी वैल्यूज आ रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट होगा. क्लियर? सो दिस इज आवर क्वेश्चन वेयर outlook is rainy.
टेम्परेचर इज हॉट, ह्यूमिडिटी इज हाई एंड विंड इज फॉल्स। तो यस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट? सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो इसको आई हैव यूज्ड, I wanted to do along with me now. I'm just taking you to the Jupyter notebook. लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना एक्सेल में चेक करो, बट we could not get the proper results. एक सेकेंड, let me open that notebook. So this is a probability, sorry, this is an example which I've done just in notebook here. That can golf be played when outlook is rainy, जो मैंने अभी वहां specify किया, temperature hot, humidity high, windy falls, क्या उस टाइम पे we can play golf? This is our question. ठीक है, so इसमें दोनों इंस्टेंसेस लिखे जैसे हमने सनी में किया था ना। एक सेकंड, लेट मी नाउ शेयर माय, गिव मी अ सेकंड गाइस। या जैसे इसमें हमने सनी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था बोथ यस एंड नो, क्योंकि दोनों जरूरी है, राइट? तभी तो पता चलेगा ना कि किसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर ज्यादा है, एंड वही विल बी माय रिजल्टेंट आउटपुट। सो सिमिलरली सेम थिंग हैज टू बी डन। जो भी हमने क्वेश्चन पिकअप किया है उसके लिए भी हमने यस और नो दोनों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट? सो नाउ द फर्स्ट वन इज गोल्फ प्लेड व्हेन इट इज रेनी, हॉट, हाई एंड फॉल्स। तो व्हाट इज द इंस्टांसेस ऑफ रेनी? टोटल आउटकम प्लेड गोल्फ, इसमें गोल्फ प्लेड है, दैट इज यस। तो यस के साथ मेरे इंस्टांसेस कितने हैं रेनी के? रेनी के इंस्टांसेस कितने हैं यस के साथ? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट मिनिमाइज। Okay, so what are my instances when it is rainy? टू बाई नाइन, एक सेकेंड, 2/9 here when rainy played golf, सिर्फ golf played तब हम कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंड हमारा क्या था? when it was hot, तो humidity, sorry, temperature was hot, तो 2/9 again here. If I come up, टू बाई नाइन ये पिक किया है, 2/9 ये पिक किया है, ह्यूमिडिटी वॉज हॉट, सॉरी टेम्परेचर वॉज हॉट, ह्यूमिडिटी वॉज हाई, 3/9 पिक किया है, दिस इज 3/9। एंड लास्ट में क्या था? when it was windy, when it was not windy, sorry, 6/9. So we have picked up these. So this is for when it was false, this is for high, this is for hot, and this is for rainy. Okay, so हमने respective probability scores लिए and we have calculated them. So when we when I just scroll this down, मैंने इसको क्या किया, I'm just assigning it as this variable. These are my probability scores. इसमें कोई confusion कि how we have gotten these probability scores? Simple वहां से pick up किया. Okay, now हमारा question क्या था? Given these conditions, what will be the probability? तो as per our formula पहले हम ये probability निकालेंगे। हमारा formula क्या था? That is px by c into pc. तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? प्लेइंग गोल्फ, तो मुझे गोल्फ की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, दैट इज 9/14। ये तो मेरी कंडीशंस थी क्वेश्चन की, दीज आर माय कंडीशंस, इनके बेसिस पे गोल्फ प्ले होगा या नहीं होगा। सो व्हाट इज दिस? px by c, राइट? एंड प्लेइंग गोल्फ यस है, तो अब मेरी pc क्या होगी? यस की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 9/14। एंड px क्या होगा? x आर माय कंडीशन, सो x क्या है? px हियर। रेनी के टोटल आउटकम कितने हैं इफ टॉकिंग अबाउट? बिकॉज हमने जैसे सनी में किया था ना इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, हमने यहाँ पे किया था ना सनी में इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग कि गोल्फ प्ले हुआ है नहीं हुआ है,
इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। तो सेम थिंग इज टू बी कैलकुलेटेड, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके लिए भी हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग हमें प्रोबेबिलिटी स्कोर कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी स्कोर पहले किसका कैलकुलेट होगा, रेनी का, बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग इज रेनी। तो रेनी के कितने इंस्टांसेस है, 2 and 3, टोटल 5। सो 5/14 फॉर रेनी। हॉट के कितने इंस्टांसेस हैं, 2 and 2, 4, 4/14। पहली बार समझना, देन ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ, आई विल गिव यू टाइम। देन ह्यूमिडिटी के कितने इंस्टांसेस हैं, 3 and 4, 7। सो 7/14। सिमिलरली विंडी इज इक्वल्स टू फॉल्स, कितने इंस्टांसेस है, 6 and 2, सो 8/14। ठीक है। सो मेरा ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है, हाउ दीज वैल्यूज हैव कम अप, एनी कंफ्यूजन हियर? PXCS ये इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी व्हेन मेरी कंडीशन ये थी और पर्सन हैज प्लेड गोल्फ। जैसे 2/9 क्या है, जैसे मेरा पहले इंस्टांस है, एक सेकेंड, रेनी है, रेनी का मैंने क्या लिया है, 2/9, हॉट का 2/9, हाई का 3/9 एंड फॉल्स का 6/9। तो रेनी 2/9 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला, ये वाला, दैट व्हेन इट वाज रेनी एंड पर्सन हैज प्लेड गोल्फ। ये यस के साथ कि जब ये मेरी सिचुएशन थी और उस टाइम पे पर्सन हैज प्लेड गोल्फ। 2/9 हॉट में क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मेरी कंडीशन ये थी ना कि ये सभी सिचुएशन है और उस टाइम पे क्या प्रोबेबिलिटी थी जब पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, यस के साथ। तो यस के साथ हॉट में क्या है, 2/9। सिमिलरली विंडी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वाज हाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/9। सी जैसे इसमें नहीं देखा था हमने ऋषभ, ये वाली चीज, यू सी व्हेन इट वाज सनी एंड पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी सिचुएशन थी, एक ही थी, सनी है और पर्सन ने गोल्फ प्ले किया है, एक ही सिचुएशन थी। अब हमारे पास कितनी सिचुएशन है, तीनों। तो ये तीनों में जब मेरी सिचुएशन रेनी थी और उस टाइम पे पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, जब सिचुएशन लाइक टेम्परेचर वाज हॉट, उस टाइम पे पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। सो व्हेन आई कम अप हियर, व्हेन इट वाज रेनी पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/9। व्हेन द टेम्परेचर वाज हॉट पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/9। When it was humid, person has played golf, 3/9। ठीक है। सिमिलरली फॉल्स के लिए 6/9। तो ये हमने प्रोबेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू यस कैलकुलेट की है। ओके, ये मेरे टोटल यस के आउटकम है और ये ओनली ये इंस्टांस अकरिंग के आउटकम है विदाउट कि गोल्फ खेला गया है नहीं खेला गया। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज कि रेनी की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल हॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल ह्यूमिडिटी हाई की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल विंडी इज इक्वल्स टू फॉल्स, दैट इज विंडी, इट वाज नॉट विंडी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो कोई कंफ्यूजन इन तीनों में, व्हाट दीज वैल्यूज आर रेफरिंग टू। सो इनको हमने क्या किया है, इन तीनों को फॉर्मूला में पुट अप किया है। सो द क्वेश्चन वाज, एक सेकेंड, ओके सो लेट्स बिगिन। सो ये तीनों चीजें हमने क्या किया है, तीनों को मैंने इस फॉर्मूला में पुट अप किया है, करेक्ट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर PX/C व्हेन आई जस्ट एग्जीक्यूटेड, PXC हो गया, देन यस,
and px, probability of playing. When I'm putting up this into the formula, that is probability when the golf is played. मैंने इनको formula में put up किया है pxc into probability. So probability when golf was played, given those instances, multiplied by probability of yes divided by independent probability for those events. So इसको मैंने formula में put up किया, and when you execute this command, this comes out to be our probability score. Okay. Clear? So this is how we. इसमें कोई confusion how we have done this? Just put up into the formula. Okay. कहाँ से, like from where, Rupa? You missed out. Okay. See, this was a formula की probability when the person has played golf, given all these events कि ये सब हुए हैं, these were my values. उसके रिस्पेक्ट में golf खेलने की probability score क्या है? तो px by c is that thing into pc, क्योंकि हम c क्या है यहाँ पे, playing probability of golf, playing golf. तो pc क्या है, playing golf. तो individual probability of playing golf में 9/14 है. एंड px क्या है, x आर दीज कंडीशंस की ये सब कंडीशन है, राइट. तो px में आएगी इंडिपेंडेंट कंडीशंस की विदाउट पर्सन हैज प्लेड गोल्फ और नॉट. इंडिपेंडेंटली मेरी क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर दीज कंडीशंस हियर. तो वही चीज हमने यहाँ पर, ये मेरे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन थे विदाउट गोल्फ हैज प्लेड और नॉट. ये with respect to when golf was played, and this is independent of golf was played or not. This is only for yes. इनको हमने बस फॉर्मूला में पुट अप किया है, that is pxc, that is probability when the person played golf given these conditions, multiplied probability when the person has played golf independent of these conditions. This is our total probability जब गेम खेला ही खेला है without anything, without considering anything else, divided by px जो क्या था मेरा, total probability of these conditions. So उसको formula में put up किया, and we just have gotten this as a probability score when the person has played golf. Okay, clear, Rupa? Now इसमें we can another way to identify, because probability score क्या होता है, one होता है aggregated. So not playing probability का you can do it this way as well, that is 1 minus, just subtract it. So this will give you when the person has not played golf. So this is the probability when the person has not played golf. But I want you to calculate it yourself कि ये तो आ गया by understood कि ये है तो ना खेलने की probability 1 minus हो जाएगी. But I want you to do it yourself अभी, that you calculate it yourself when the person has not played golf. Given these conditions, rainy, hot and false. अभी आप you do this thing, इसको अभी लिख लीजिए, you do the code part and then calculate for no, and then see what error या what confusion you are getting. इसमें कोई confusion है तो बताओ. Yeah, instead of doing this, simply do for no, then I'll share this file with you later on with both the things. But I wanted to try for probability no. जैसे मैंने yes के लिए निकाला, try the same thing for probability no. Clear है what I'm asking for? Any confusion in that कि like या इसमें कोई confusion हो? हाँ जी. Yes.
लेकिन ये भी तो देखो ना, हम इंडिपेंडेंटली, दिस इज नथिंग, वी आर नॉट टेकिंग इट एज इंडिपेंडेंटली। सबके इंस्टांसेस ही एक चीज का टोटल रेनी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, कि रेनी होगा या नहीं होगा। हॉट की प्रोबेबिलिटी गर्मी है या नहीं है, विंडी है या नहीं है। लेकिन मल्टीपल चीजों को मिलाओगे तो प्रोबेबिलिटी 1 से अबव तो जाएगी ना। एक टाइम पे एक की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं जा सकती, कि आइदर विंडी है या नहीं है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव 1 होगी। लेकिन आप यहाँ कितनी कंडीशन दे रहे हो, 4। क्लियर मनीष? तो इन टोटल की एग्रीगेटेड 1 से तो अबव जाएगी ही जाएगी। बट यहाँ पे मुझे क्यूमुलेटिव फॉर्मूला में भी विल मल्टीप्लाई, लेकिन क्यूमुलेटिव तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है इन चीजों की, द टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर दीज टू हैपन। यहाँ पे तो अभी भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एनी अदर कंफ्यूजन, एनीवन, या कोई भी डाउट हो? So try doing it for gnome. Have you? How many of you are doing it? Yeah, have you done it? Okay. Try seeing the probability score and put them into the formula. Hanji, any error while doing it? Any problem? हाँ जी ऋषभ, ये वही है, नाइफ बेस बेस थ्योरम। सेम उसी से, नाइफ बेस इज व्हाट, सेम दैट गॉसियन नाइफ बेस थ्योरम से ही आई है ये।
तो किसी का हुआ, कैलकुलेट किया? हाँ जी जॉनी। रेनी हाई हॉट फॉल्स फॉर नो। जैसे भी यस का कैलकुलेट किया, 2.19। आर यू गेटिंग दिस वैल्यू? आपका ये वैल्यू आ रहा है जॉनी, क्यूमुलेटिव, लाइक पुटिंग इनटू द फॉर्मूला। टोटल निकालिए ना, पी एक्स का, ठीक है, लेकिन टोटल भी तो निकालिए। जैसे ही टोटल जब हमने अभी दिखाया, या फॉर्मूला में पूरा पुटअप करके। जो कि 0.458 समथिंग आना चाहिए, जो भी 1 माइनस हमने किया उसकी इक्विवेलेंट। uh, 3.99, नो अचल। दोबारा क्रॉस चेक करो। हाँ जी, बाकी किसी का आपका कैलकुलेट हुआ? रूपा, हाँ जी, 4 पॉइंट समथिंग। यस करिश्मा। आपका हुआ? कार्तिकेय, ऋषभ, रोहित। अच्छा, फिगर आउट किया व्हाई द वैल्यू इज दिस मच? हाँ जी रूपा, 4.5 समथिंग, 0.45, नॉट 4.45। यही तो है रूपा, 0.458, 0.45833 समथिंग। आपका क्या रहा है, 28? आपका 1.78 आ रहा है कार्तिक है, टोटल फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद।
गलत है कार्तिक, बिकॉज हमारी यस की प्रोबेबिलिटी तो 0.54 थी ना, तो और वैसे भी प्रोबेबिलिटी वन डिसीजन के लिए गोल्फ यस और नो, एक के लिए तो कैन नॉट बी मोर देन वन। हाँ जी, who have gotten 4.8 something. करिश्मा has gotten. जॉनी आपका आया? मनीष, रोहित, ऋषभ। अच्छा, ओके। नो 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 नो, 4.99 नहीं, 0.458 समथिंग। सी ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, सभी की प्रोबेबिलिटीज व्हेन गोल्फ वाज नॉट प्लेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लेइंग गोल्फ, और लास्ट में टोटल एग्रीगेटेड प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ की गोल्फ प्ले किया है नहीं प्ले किया है। पॉइंट फोर, हाँ जी जॉनी, दिस मच अराउंड। हाँ जी, वो बाकी सब, आर यू एबल टू कैलकुलेट या यू वांट मी टू डिस्कस द सॉल्यूशन? हाँ जी, प्लीज टेल मी। कार्तिक आपका सही आया? मनीष, मनीष आपका, रोहित आपका।
मनीष आपका आया? मनीष, ऋषभ आपका आया? ओके ओके। संचित आपका आया? हैव यू कैलकुलेटेड संचित एंड अशांक? अशांक आप, अचल आपका सही आ गया? अशांक 0.458 समथिंग। अचल आपका? अचल आर यू देयर? 0.44. Okay, so let me discuss the solution now. सी ऊपर हमारा हमेशा क्या होता है, एक बार में मे बी सम ऑफ यू आर कंफ्यूज, दैट इज व्हाई अभी भी सम एरर इन द सॉल्यूशन। हमारा क्या था क्वेश्चन कि इफ दीज आर द सिचुएशन कि अगर रेनी है, हॉट है, हाई टेम्परेचर इज हाई, सॉरी ह्यूमिडिटी इज हाई एंड इट इज नॉट विंडी, टेम्परेचर गर्म है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या है, एंड इनके रहते हुए द पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सी व्हेन इट वाज रेनी, रेनी के टाइम पे यस के कितने इंस्टांसेस है हमारे? 9 इंस्टांसेस है यस के। व्हेन इट वाज रेनी एंड द पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, तो कितने इंस्टांसेस है मेरे? 2/9। ये मेरा 2/9 वहां से आया। व्हेन द टेम्परेचर वाज हॉट एंड द पर्सन हैज प्लेड गोल्फ, सी हमने यहाँ पे यस के लिए निकाला है, ऐसे ही नो के लिए निकलेगा। तो पहले हमने रेनी के लिए यस का क्या था? 2/9, तो नो के केस में क्या आ जाएगा? 3/5 व्हेन पर्सन इज नॉट प्लेइंग गोल्फ। Let me come to this English straight away. सी व्हेन इट वाज रेनी, अब किसके लिए निकाल रहे हैं? नॉट प्लेइंग गोल्फ के लिए। यस के लिए हमने ऊपर क्या था? नॉट प्लेइंग गोल्फ। तो सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली टोटल नॉट प्लेइंग गोल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, कि कोई भी वेदर है, गोल्फ प्ले नहीं किया है किसी ने, तो कितने इंस्टांसेस थे मेरे नो के? 5 थे। और टोटल डेटा सेट में कितने हैं? 14। तो गोल्फ नॉट प्लेड की कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/14, क्योंकि 14 तो टोटल आउटकम है ना, और उनमें से 5 है नॉट प्लेड। बी चाहे वो टेम्परेचर हाई था, नॉर्मल था, या कैसा भी था, लेकिन गोल्फ वाज नॉट प्लेड 5 टाइम्स इन टोटल डेटा सेट। ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लेइंग गोल्फ गिवन, अब मेरी कंडीशंस आ गई कि जब रेनी वेदर है, टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, लेकिन विंडी नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है जब रेनी था एंड गोल्फ नहीं प्ले किया गया? क्या प्रोबेबिलिटी है मेरी? 3/5। दूसरी कंडीशन क्या थी? जब मेरा टेम्परेचर ज्यादा था एंड गोल्फ प्ले नहीं किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/5। तीसरी कंडीशन थी जब इट वॉज ह्यूमिडिटी वॉज हाई एंड गोल्फ वॉज नॉट प्लेड, ये वाली ह्यूमिडिटी वॉज हाई एंड गोल्फ वॉज नॉट प्लेड। नॉट प्लेड के लिए ह्यूमिडिटी हाई में क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/5। एंड लास्ट में हमारी क्या कंडीशन थी कि जब विंडी नहीं है तो गोल्फ प्ले की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जब विंडी नहीं था, विंडी फॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5।
करेक्ट। ये चीजें मैंने यहाँ पे इसमें स्टोर कर ली ऐड करके। ये तो मेरी नो की प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटलुक, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंडी या बाकी किसी फीचर के इंडिपेंडेंट सिर्फ नो की प्रोबेबिलिटी कि कितनी बार गोल्फ नहीं खेला, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ये 5/14। ये प्रोबेबिलिटी है जब कुछ कंडीशंस थी और उस टाइम पे गोल्फ की प्रोबेबिलिटी, गोल्फ नॉट प्लेइंग गोल्फ की प्रोबेबिलिटी क्या थी। सो दिस इज द एग्रीगेटेड प्रोबेबिलिटी px नो। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी है, डिड आई रिमूव दैट सेल, एक सेकेंड। ये दो चीजें निकल के आ गई। नाउ हमारा थर्ड में क्या था, विच हैज टू बी डिवाइडेड कि गिवन कंडीशंस उनका टोटल प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ गोल्फ प्ले किया है नहीं किया है। तो इट वाज p/x, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ना हर चीज के लिए, ये यस और नो से अफेक्टेड नहीं है। मेरी ये कंडीशंस थी एंड इट इज सेड इररिस्पेक्टिव ऑफ गोल्फ प्लेड और नॉट। तो ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ये इंडिपेंडेंट है कि जब ये कंडीशंस है तो मेरी प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या होता है हर रिस्पेक्टिव कंडीशन का, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। तो इट विल बी ऑलवेज सेम। मेरा रेनी की टोटल प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या है, रेनी का टोटल प्रोबेबिलिटी स्कोर 5 है ना, यू सी हियर 3 + 2 5 है। सिमिलरली ह्यूमिडिटी हाई का क्या प्रोबेबिलिटी स्कोर है, 7/14। टेम्परेचर हॉट का 4/14 एंड 8/14। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इसमें दोनों का हमने लिया है, गोल्फ प्ले किया है नहीं किया है, इंडिपेंडेंट ऑफ हमने टोटल उस फीचर के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया कि वो कितनी बार अकर होती है। ओके, इसको बस अब अपने फॉर्मूले में पुटअप किया। हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी गिवन कंडीशंस एंड गोल्फ प्ले नहीं हुआ मल्टीप्लाइड बाय गोल्फ प्ले नहीं हुआ डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशंस। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशंस क्या थी, ये थी कि किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। पीसी क्या आएगी, नॉट प्लेइंग गोल्फ की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है कि जब गोल्फ प्ले नहीं किया और ये सिचुएशंस थी उनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। नो की प्रोबेबिलिटी ये है जब कंडीशन थी, दीज वर माय कंडीशन जो भी हमने डिस्क्राइब किया, रेनी हॉट विंडी एंड सो ऑन, उनकी प्रोबेबिलिटी व्हेन गोल्फ वाज नॉट प्लेड। ओके, इनको भी हमने फॉर्मूला में पुट अप किया है, pxc नो into probability of no divided by total probability independent of कि golf play हुआ है या नहीं हुआ है। Okay, so when we put them into the formula here, so this is what 4.8 it is calculated. Ideally ये एक probability निकालो उसको 1 माइनस करके भी निकल सकता है, but this was just to कि how the probability scores are calculated. Now where were you going wrong, जिनका getting wrong values, आप कहाँ mistake कर रहे थे। Where were you getting wrong? Okay, let me put charger. हाँ जी, where were you doing wrong कि your scores were different, your probability score was different. कार्तिकेय कहाँ आपका रॉन्ग आ रहा था। अचल, जॉनी, आपका लाइक वेयर यू वर डूइंग रॉन्ग। हेलो। हाँ जी जॉनी। नहीं मैम, मेरा तो ठीक आ गया था ना, 0.447 लाइक उसमें। ओके ठीक है। आपका कार्तिकेय आपने जो स्कोर बताया था वो आपने 4.9 बताया है।
इनकरेक्ट कैसे? 5/14 नो की प्रोबेबिलिटी। ओके अचल। कोई कंफ्यूजन है इसमें? लाइक क्लियर हुआ हाउ वी कैन कैलकुलेट रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एंड हाउ। अब इसमें नाइव बेस का क्या रिजल्ट आएगा कि इफ गिवन दीज कंडीशंस कि अगर रेनी है एंड टेम्परेचर इज हाई एंड इट इज विंडी, या जो भी हमने कंडीशंस लिए है उसमें व्हाट विल बी द रिजल्ट फॉर नाइव बेस? आउटपुट क्या आएगा कि वेदर द पर्सन विल प्ले गोल्फ और नॉट प्ले। मैं इसमें ये पूछ रही जॉनी कि गिवन दीज वैल्यूज, एम आई ऑडिबल? So given I'm asking कि आपकी this is the probability for when the person has played golf 0.54 and 0.45 is the probability that the person has not played golf. So naive base का क्या output आएगा कि whether the given these conditions कि will the person play golf or not, हमारे दो probability score calculate हो गए हैं. So ये is much more okay. One more thing, I want you to round it off. Ideally ठीक है, लेकिन I'm just asking you to do a hands on here. इसको I don't want these many decimal places. I just want one or two. How will you do it? Round off. How will you round it off to 2 decimal places? Hanji, how will you round it off? Why nobody is replying? How will you round it off to 2 decimal places? जो आपका आउटपुट है बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है. I just want 2 decimal places. How will you do it? Try doing it. करके देखो एक बार. Are you able to? या एरर आता है? हाँ जी, ठीक है. फ्लोर में हाँ, लेकिन फ्लोर में ये इट विल बी you know it will be converted to a value, lower bound, lower circuit पे. You can do it lower circuit पे, वो convert हो जाएगी value.
2f, okay. 1.2f. What is f, Achal, here? Achal, आपके में f क्या है? लाइक वैल्यूज कहाँ दे रहे हो आप? So let me tell you. See, you can use this way. Either you can use either way. In fact, कोई भी use करो. But see, this is a numpy round function जिसमें भी values put up करा दी and कितने decimal तक चाहिए. Correct? मुझे इसे 2 decimal तक चाहिए. So this is my 2 decimal place output by using numpy round functionality. ठीक है. दूसरा हमने कौन सा किया था? हाँ जी कार्तिकेय. Why decimal? Why don't you use simply numpy? Simple numpy is good enough, but if you want, you can use it, no problem. ठीक है. Now second was जो हमें precision handling के टाइम पे किया था, right? कि कितने decimal places चाहिए? I want 2 decimal places. लेकिन इसका क्या है? जब इसको आप print करोगे, you will get the results in form of string. Let's say अगर मैं ये float हटा देती हूँ यहाँ से Control X and let me just remove it. You see मेरा 0.54 क्या आया? String में आया, लेकिन I want it in the form of floating values, decimal में. तो मुझे इसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ा float. So when I executed this command, मेरा पूरी वैल्यू आ गई 0.54. ऐसे ही इस कमांड से, जैसे हमने देखा था ना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजिंग प्लेस होल्डर्स, ये मेरे प्लेस होल्डर्स होते हैं, राइट? तो मेरी वैल्यू कहाँ से आई? प्रोबेबिलिटी गोल्फ प्लेट की वैल्यू आई एंड किस में गई? इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस. ये भी आपको जो रिजल्ट देगा विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो इसको भी फ्लोट में टाइप कन्वर्जन जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन में आया था, यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन में यू विल गेट योर रिजल्ट. तो टाइप कन्वर्जन ऑफ फ्लोट इज डन. ठीक है. फ्लोर और सील यूज करोगे तो 54 का हम सील यूज करेंगे तो 54 का में भी अपर सर्किट में 55 हो जाएगा. इफ यू यूज फ्लोर तो लोअर सर्किट में इट कम आउट टू बी 53. वो एक वैल्यू या 54 एक वैल्यू लो या अपर में चला जाएगा. ठीक है. डेसिमल प्रिसिशन के लिए, राउंडिंग ऑफ के लिए वी जनरली यूज राउंड फंक्शनैलिटी, या फिर आप ये कोई यूज कर सकते हो. ठीक है. एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? Okay, so coming on to this in NumPy naive base, sorry not NumPy, naive base probability, ये हो गया almost हमारा. So some like confusion है कि naive base में how probabilities are calculated, how decision is made, इसमें कोई confusion है? If given any question, can you calculate कि with respect to these conditions मेरी probability क्या होगी, naive base क्या result देगा? एक assumption है naive base की that all values of a particular feature are independent from each other. So एक naive base की बहुत ही basic assumption होती है कि हर चीज, जितने भी features होते हैं, they are equally important and they are equally independent of each other. कोई भी feature किसी दूसरे feature पे dependent नहीं है. So this is the only single assumption
एंड वी डू नॉट डू एनीथिंग कि इसको हम हटाते हैं, जैसे हम assumption उसमें करते हैं ना, लीनियर रिग्रेशन में हम मल्टीपल टेस्ट करते थे या समथिंग लाइक दैट, इसमें भी डू नॉट डू एनीथिंग, वी जस्ट सिलेक्ट द फीचर्स, अगर नए नए फीचर या नए कॉलम बनने हैं वी डू दैट थिंग and we just put them into the, after doing the data cleaning part हम जिसको put up कर देते हैं, otherwise हम we do not do anything else कि हम assumption meet कर पाए, because ideally assumption हर चीज independent नहीं होती, salary is related to the employment years, is also related to the age, is also related to the education background. तो this assumption is generally ignored, but एक assumption आपको पता होनी चाहिए that as per the naive base works on assumption कि हर variable is equally important and independent of each other. एक assumption है इसकी. Okay. So same example, बस यहाँ पे it was done here, same, nothing else, वही चीज है, we have done already here. So same thing we have calculated. So any confusion in naive base कि how things are done in naive base here? सिंपल सा एल्गोरिथम है, प्रोबेबिलिटी बेस पे करेगा एंड ओनली क्लासिफिकेशन, इट डज नॉट वर्क ऑन रिग्रेशन, ओनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है. ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक एंड देन ओके, उससे पहले आई विल शेयर अ डेटा सेट विद यू टुडे, या इफ यू हैव वन आपके पास ऑलरेडी है देन यू कैन यूज दैट. So I want you to implement naive base. मैं आपको बता देती हूँ naive base कहाँ से import होगा, बस यही बताऊंगी. I want you to create an end-to-end model. Let me just send it to you here. This is Gaussian naive base. Let me just copy and send it here. You have to, आपको naive base की functionality समझ में आ गई है. You have to create an end-to-end model. Data set आपके पास है, well and good. Otherwise, I'll look for one and I'll share it with you by end of the day. And चलो कल सुबह क्लास है या फिर आई सेंड इन एन आवर और 2, ठीक है. इफ यू हैव वन यू कैन वर्क ऑन दैट. आई वांट यू टू इम्प्लीमेंट नाइव बेस एंड टू एंड. आपको ये पता चल गया कहाँ से इंपोर्ट होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, डेटा क्लीनिंग का पार्ट, रिजल्ट्स कैसे चेक होंगे, एवरीथिंग एल्स इज ऑलरेडी कवर्ड बाकी एल्गोरिथम्स के साथ. सो आई वांट यू टू मेक अ मॉडल. कर सकते हैं इसमें कोई लाइक एनी क्वेश्चन की हाउ विल डू इट? एंड टू एंड प्रोसेस क्लियर है कि कैसे मॉडल बनेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड? एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हाउ विल क्रिएट अ मॉडल फ्रॉम starting from the problem statement till results? Is anyone having any kind of data set जिसमें classification problem है? I will have to search it online. आपके पास कोई है डेटा सेट? Yeah, that I'm asking. अगर नहीं है then I'll search it. I'll send it to you. Otherwise आपके पास if anyone is having such kind of data जिसमें थोड़ा data cleaning वगैरह भी required है, outliers है, so is anyone having such kind of data? आपके पास है रूपा? If you don't have any problem, can you share with all of us so that we all together can, मुझे फिर ना ढूंढना नहीं पड़ेगा. You'll save my efforts. If you can share. हाँ जी, वही कैगल से यूसीआई से वही लेते हैं, वही मुझे भी वही जाके ढूंढना पड़ेगा. That's why अगर किसी ने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है. ओके, सो आप मुझे भी भेज देना एंड ईमेल पे लाइक रिवर्ट ऑन द सेम थ्रेड. सो रूपा विल शेयर द डेटा सेट. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है रूपा, और इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन, फिर कौन सी प्रॉब्लम है? रूपा नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन है. हाउ विल इट वर्क ऑन रिग्रेशन डेटा? ओके, मैं एक काम करती हूँ, आई लुक फॉर डेटा, आई ईमेल यू, ठीक है, विद इन एन आवर और 2. तो आई वांटेड टू मेक अ नाइव बेस्ड मॉडल. ओके, देन टुमारो विल डिस्कस इट, और एंड आई वांटेड टू मेक इट टुडे इटसेल्फ. पूरा दिन है आपके पास, इफ यू डोंट हैव मच ऑफ द वर्कलोड.
Okay, so let's have a break. मैं naive base का I won't be covering the coding part. I've given it to you as a homework. So I'll start with either logistic. Okay. I was saying रूपा कि नाइव बेस का मैंने बता दिया how नाइव बेस वर्क कैसे काम करता है. I want you to create a model end to end. डेटा इंपोर्ट से लेके रिजल्ट दिखाने तक, रिजल्ट निकालने तक कि मॉडल कैसा बना है, क्या मेरे रिजल्ट्स आए हैं, क्या डेटा फ्रेम में क्या वैल्यू प्रेडिक्ट हुए, एंड टू एंड. आई वांट यू टू क्रिएट अ मॉडल end to end using naive Bayes algorithm. Also, not only naive Bayes, use other algorithms also. जो भी मेरी क्लासिफिकेशन algorithm है सभी implement करोगे. रैंडम फॉरेस्ट है और SVM है और डिसीजन ट्री है, implement KNN है, implement all of them. Not only naive Bayes, सभी implement करके you have to see the results for all. Okay, and we'll discuss it tomorrow. So let's have a break of 5 minutes and then we shall resume our session. Okay. Let me just leave a note here.
Is everybody here? Let's start with lasso and ridge regression. Okay. ओके द पर्पस जैसे हम लीनियर रिग्रेशन करते थे राइट सो समटाइम हमारी मल्टीपल अजम्पशंस है लीनियर रिग्रेशन की लाइक हमारा वी हैव मल्टी कोलिनियरिटी वी हैव auto correlation we have some other assumptions also at times our model overfit कभी कभी हम you know we give our best parameters we train our model very well या हम data set we tweak कर लेते हैं but still we find that you know we are getting overfitting or underfitting in our model तो उस केस में we can use lasso and ridge regression models okay so what they'll do is they are you know similar to linear regression वही काम करेंगे but in addition to it they add you know a penalty parameter agar if a value is you know much more fitted so a penalty parameter will be added let's assume एक value say you know for one value x1 is the predicted value actually let me begin अभी मैं confuse कर दूंगी आपको से okay so lasso ridge regression generally दो चीज के लिए होता है when we have you know underfitting or overfitting in our data then we can use lasso ridge regression और जो lasso regression है can also be used for feature selection this is also a feature selection technique where you know as per you have given your best features लेकिन lasso भी एक feature selection कर सकते it perform feature selection by you know as I told you penalty add कर देता है coefficients हमारे calculate होते हैं backend में we have coefficient for every attribute अगर x y a b c मेरे 5 attribute है then उन पांचों के लिए अलग अलग coefficient value calculate होती है and if coefficient किसी भी attribute का बहुत ज्यादा है you see you can see here so regression coefficients क्या होते हैं indicate the impact of a unit change in variable x to the estimated variable of y so अगर if coefficient of age अगर मेरा एज में कुछ वैल्यू कुछ वेरिएबल कुछ वैल्यू चेंज होगा उस कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा टारगेट वैल्यू में कितना रिफ्लेक्शन या कितना चेंज होता है दैट व्हाट कोएफिशिएंट्स टेल अस आपको पता है ना व्हाट कोएफिशिएंट्स आर वी डिड इन लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की क्लैरिटी है व्हाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट and how we can interpret them for with respect to target coefficient tell us you know how a variable if we change a variable so how much of the units change will be reflected into a target variable as well coefficients का concept like you know what coefficients are inverse not mandatory रूपा inverse जरूरी नहीं है they can be a positive if my coefficients are positive it means there is a positive relationship अगर if with respect to that variable the value if positive coefficient then the value will increase अगर negative है then it means it is an inverse relationship ठीक है so coefficient tell us कि impact और change in variable x of that respective coefficient तो मेरे y में कितना change आएगा if a coefficient is very high as written here if the value of a coefficient is very high it means the more power it has to change the predicted response okay which result in high अगर मेरा किसी वेरिएबल का बहुत ज्यादा कोएफिशिएंट है it means that variable is very much important and you know it can change like it has much capability of changing the variable the predicted value ये point clear है what this value is talking about what this line is talking about if the coefficient value is very high then the more important it is the more important role it has played in order to predict the target value तभी उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था टारगेट प्रेडिक्शन के लिए दैट इज व्हाई द वैल्यू इज लार्ज अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वैल्यू भी लार्ज नहीं आती करेक्ट कोई कंफ्यूजन इस लाइन में व्हाट दिस लाइन इज टॉकिंग अबाउट ओके नाउ इस चीज को अवॉइड करने के लिए सो दैट यू नो वी डू नॉट हैव सर्टेन कोएफिशिएंट या सर्टेन पैरामीटर्स
even if, see, as I told you, when we have given our parameters, we have tweaked the model, हमने हमसे feature selection भी किया है, but still at some point our model is getting overfitted या underfitted. तो उस case में we can use them. These are also मॉडल इम्प्रूवमेंट जो रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है लासो एंड रिच, ये ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग हटाने के लिए भी होती है, ठीक है. सो इन ऑर्डर सो दैट दीज लार्जर कोफिशिएंट डज नॉट डोमिनेट, हम क्या करते हैं, वी कॉन्स्ट्रेंट, हम उनको वी कॉन्स्ट्रेंट करते, वी श्रिंक दोज वैल्यूज टुवर्ड्स जीरो. सो इफ वो वैल्यू इज वेरी हाई एंड इफ वी श्रिंक इट, सो उसकी the importance will also be reduced if the value was very large. लेकिन हमने इसमें पेनल्टी टर्म ऐड की and we shrink the value, then जो उसका the power to change the predicted response that has been decreased if we shrink the value or if we change the value towards zero. अगर 5 थी and if we are shrinking it by adding a penalty or something like that, we reduce that value by adding a penalty. Achal, we add a penalty term to it. इसमें हम when we move further, इसमें हम magnitude of squares, coefficient square and absolute value of coefficients हम वो डालते हैं as a penalty term multiplied with lambda. So उससे the value get reduced. ठीक है. So it is a method of constraining or regularizing the size of coefficient, thus shrinking them towards zero so that larger coefficient does not dominate the prediction value. ठीक है. It also reduces the model variance. Acha, okay, what can be an important factor before regularizing? If we are having, एक second, achal, अभी हम आगे करेंगे. अभी let me come to that thing, then I'll explain what penalty is. ठीक है. So what in terms of regularizing, like if we say age column, salary column, and house, yes, sales price of a house. So कौन सा वैल्यू ज्यादा डोमिनेट करेगा? सेल प्राइस ऑफ अ हाउस है, सैलरी है एंड एज है, या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है? ऑल आर ऑन डिफरेंट स्केल, सो कोफिशिएंट्स वैल्यू भी उनके रिस्पेक्टिव ज्यादा होंगी. सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? अगर उस पे मैं सीधा रेगुलराइजेशन लगा दूंगी, what kind of values will I get in my coefficient? Regularization मतलब अभी के लिए कि we reduce the values, we shrink those values. हम उनका जो dominance है वो हटा देंगे. So if we have columns as in sales price of a house, maximum age of a person, the number of dependents and salary of a person. यानी let's forget salary नहीं है, बाकी चार है. So in that case, which column will dominate the data? Age है, dependents है, and house price है. Which column will dominate the data? या which data will dominate if we feed that into our ML algorithm? किसकी coefficient ज़्यादा high मिलेंगे? House price, because house price की ज़्यादा value है, right? Because the larger value and उसी scale में उसके coefficient calculate होंगे. So we have one thing is mandatory before using lasso or ridge regression. It is always mandatory to scale the data. Scaling what and if I'm talking about scaling, what I'm talking about, what do you mean by scaling here? Why should we scale the data and how do we scale the data? Okay, what about others? Hanji. So that we bring them everything on the same scale, scaling using standard scaler, या subtracting the mean value, या taking the logarithm or something like that. हम उसको scale कर देते हैं so that जब उस पे हम lasso और ridge regression लगाएं so that
जो भी मेरा लार्जर कोफिशिएंट वाला कॉलम होगा, लार्जर कोफिशिएंट जिस भी फीचर का होगा, बिकॉज उसकी सबसे ज्यादा श्रिंकेज होगी, एंड आइडियली हाउस प्राइस ऑन इट्स ओन इज अ करेक्ट वैल्यू, लेकिन कंपेयर टू डिपेंडेंस एंड एज वो इज एन आउटलायर या बड़ी वैल्यू है विच कैन डोमिनेट द डेटा. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज did I copy paste your name? Okay, so it is always mandatory to rescale, sorry, not to scale your data before putting up these lasso and ridge regression to your data set, so that अगर हाउस प्राइस वाला कॉलम है उसका कोफिशिएंट वैल्यू भी ज्यादा होगा, सो दैट इट इज नॉट मच इम्पैक्टेड. सभी की इक्विवेलेंट श्रिंकेज हो, एवरी कोफिशिएंट इज मूव्ड टुवर्ड्स जीरो इक्वली, नॉट कि जिसका सबसे ज्यादा था वही उसको लाइक वी हैव मूव्ड दैट ओनली टुवर्ड्स जीरो. ठीक है. So इसमें this is an example here along with it is simple just to tell what is residual sum of squares. You all are aware of it. We use this. What does residual sum of square tell us? RSS. जब अपने linear regression में, in normal linear regression we have we estimated the coefficient value and then we calculated the residual sum of square. Residual sum of square is kind of error that is predicted minus observed value, एंड हमेशा हमारा मेन गोल क्या होता है, इसी को रिड्यूस करने का, राइट. सो इसी पैरामीटर के साथ वी एड अ पेनल्टी टर्म. ठीक है. सो फॉर हाउ डज रेगुलराइजेशन वर्क, इसमें वी मिनिमाइज द सम ऑफ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स बाय एडिंग अ पेनल्टी टर्म जो कि हर कोफिशिएंट को पेनलाइज करेगी. इसका एक फॉर्मूला है, आई टेल दैट एज वेल. सो दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्केलिंग शुड बी परफॉर्म before penalizing, otherwise it will just look for that one dominating data, because they would be simply penalized because of their scale, because larger values है तो उनको ज्यादा. हाँ जी. Okay. So we work with residual sum of squares and इसके साथ हम penalty term add करते हैं. So lasso is also called as least absolute shrinkage and selection operator. इसको हम L1 regularization में बोलते हैं, and this is also called for feature selection. So इसमें क्या होता है, it shrinks the coefficients all the way to zero. This is the formula here. RSS again is that predicted minus actual value into alpha is the penalty term. Sum of absolute values of coefficient, सभी coefficient values लिया जाता है and they are summed up together and they are multiplied with this alpha parameter. I'll tell you what alpha is next here. अभी बता देती हूँ. Alpha is the tuning parameter that controls the strength of penalty. So हमारा एक तरह से penalty term क्या हो गया, alpha into the sum of absolute values of coefficient. ये मेरी, because ये क्या था, actual minus predicted जो मेरा error था, उसके साथ this is our penalty term. पेनल्टी में वी कंप्यूट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स जो मेरे एल्गोरिथम ने कैलकुलेट किए इनटू अल्फा, एंड अल्फा की रेंज होती है 0 से इंफिनिटी. इट इज द ट्यूनिंग पैरामीटर दैट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ. अगर अल्फा 0 है, इट मींस वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ पेनल्टी, बिकॉज 0 के साथ when this w is multiplied, what we get 0, it means we are not imposing any penalty here. So it will be similar to that kind of linear regression result. But as we increase alpha, the more coefficients are said to be 0. और क्योंकि अगर मैं alpha value increase करते जाऊंगी, if my alpha is 1, 0.1, 0.2 or 3, तो उस according the penalty term, because जो मेरी इससे वैल्यू कैलकुलेट होगी, if I multiply it with 1 या 2, तो मेरी ये वैल्यू भी उतनी ज्यादा ही होगी, राइट. तो उस अकॉर्डिंग the more coefficients are said to be 0. So backend में जो calculation होते हैं, the coefficient values are changed, and the more alpha you give, your coefficients will tend to be 0. Like अगर कोई बहुत आपकी coefficient किसी coefficient की value बहुत ज्यादा है, then by adding this parameter, this penalty parameter, that is alpha into, not alpha, I'm speaking wrong, lambda. Sorry for that. Lambda into that sum of squares of absolute values of coefficient. This is not alpha, I'm saying wrong.
As alpha increases, bias increases. What is bias in terms of, if I'm saying alpha increase, sorry, again I'm saying alpha. If lambda increase, what I'm saying bias increase. So what in terms of bias we are talking about? So what is bias in terms of overfitting, underfitting? अगर मैं lambda increase कर देती हूँ, my bias increase. Like I'm adding much more penalty to the data. जितनी ज्यादा पेनल्टी जाएगी उतना my error will be increasing. So my model will tend to underfit them. अगर if I decrease my lambda, it means with lambda 0 I'm not doing anything. But if I'm taking very less value of lambda, it means I'm not giving that much penalty to the terms. It means I'm allowing some kind of like very less. अगर मेरा मॉडल ओवरफिटेड है और मैंने पेनल्टी भी ज्यादा नहीं दी है, so in that case I'm not putting much of the penalty to my data. So in that case, I may lead to increase of variance. So इसमें we have to choose in the value of lambda so that the model is not neither underfitted nor overfitted, and we should not take it equal to 0 because then it means we are not adding any kind of penalty to the term. इसमें जो हम पेनल्टी लगाएंगे, lambda controls the strength कि जितना भी आपका ये sum of absolute value आया है कोफिशिएंट्स का, absolute value is positive, जितना भी कोफिशिएंट्स का सम आया है पॉजिटिव, that is multiplied with that value, and उसको हम जो हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स है एरर उसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, and we get a value. So here the theory part, it shrinks the coefficient all the way to 0 by making them 0 or removing them from the model. See लास्ट में ही होता है कि अगर आपके जो it's saying कि shrinking the coefficient, shrink कैसे करेगा, by this it will add a penalty जिससे your values will be shrinked and they will come out to be 0. तो एक टाइम पे ऐसे भी होता है कि जो आपके कॉलम्स हैं, सॉरी फीचर्स हैं, उनमें कोफिशिएंट 0 हो जाता है, and if a coefficient is 0 it means कोफिशिएंट 0 है, it means that फीचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर कोई हमने फीचर लिया है मॉडल बनाते टाइम, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, इट मींस दैट मॉडल वाज दैट फीचर वाज कंसिडर्ड मॉडल के लिए. अगर उसकी कोफिशिएंट हम नहीं लेंगे तभी तो कोफिशिएंट 0 आएगा ना, या फिर लिया है कोफिशिएंट 0, इट मींस इट वाज नॉट कंसिडर्ड. तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इट हेल्प्स इन फीचर सिलेक्शन एज वेल, कि अगर हमने ज्यादा हमने पेनल्टी ऐड कर दी तो जो मेरे कोफिशिएंट की वैल्यूज है वो 0 भी हो जाते हैं, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दे विल टेंड आउट टू बी 0, एंड वी आर लेफ्ट विद, अगर मेरे 5 फीचर्स थे एंड उसमें से 2 की वैल्यू 0 हो गई, 2 कोफिशिएंट 0 हो गए हैं, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फीचर सिलेक्शन एज वेल, बिकॉज ये क्या कर देता है, इट विल मेक देम 0. जो दूसरा है रिच, इट वोंट मेक देम 0, बट लासो आपके कोफिशिएंट्स को 0 बना देता है इफ यू इम्पोज अ हायर पेनल्टी टू इट, ठीक है. सो इट गिव्स यू स्पार्स मॉडल मतलब विद फ्यू पैरामीटर्स. ओके, सो adds a penalty equal to the absolute value of magnitude of coefficients multiplied with this lambda. Actually let me copy paste it from there. With this lambda, ठीक है. So larger penalties result in coefficient values closer to 0, and if the group of predictors, मतलब if my features are highly correlated, then it will pick one of them and बाकी सबको 0 बना देगा. So feature selection के लिए भी यूज होता है, प्लस overfitting and underfitting के लिए भी यूज होता है. This is generally used कि अगर आपका मॉडल is not performing and आपने सभी फीचर्स लिए हैं, have taken some features but still model is not performing, so it will automatically take a penalty and it will put that penalty, like ये penalty कैसे calculate होगी, this is the formula. lambda की value होती है which we define ourselves, and it will make the coefficient values कि कौन सा coefficient important है, basis on this formula which coefficient is important and which coefficient is to be considered here.
So this is what RSS is: actual minus predicted, residual sum of squares plus the penalty term here. The sum of squares of error between the predicted and the actual value. ठीक है, कुछ समझ में आया है, कुछ भी समझ में नहीं आया? लासो में थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये कि हाउ थिंग्स आर कैलकुलेटेड. समझ में आया? बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? प्लीज बताओ. बाकी सबको ये भी जैसे हम लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करते हैं ऐसे इनका मॉडल, ये दीज आर मॉडल, इनको हम इंपोर्ट करते हैं, वी पुट देम इनटू द डेटा. कार्तिक, मैंने भी इसका कोड नहीं बनाया. आई मेक द कोड टुडे एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन द कोड. कोड में कुछ नहीं है. जैसे हम रेगुलर मॉडल को फिट प्रेडिक्ट करते हैं ना, कोफिशिएंट की वैल्यूज देखते हैं, वैसे ही चलेगा ये. कुछ डिफरेंस नहीं है. उसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट होगा, नॉट लाइब्रेरी, उसी क्लास से इंपोर्ट होगा, वही फिट प्रेडिक्ट एंड कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेक करेंगे. लेकिन वो वैल्यू कैसे चेंज करता है, दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे कोफिशिएंट की जब हम लासो रिज रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाएंगे एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे तो हमारी कोफिशिएंट की वैल्यूज डिफरेंट होंगी. Because we have these, because वो backend में it changes the value, so that is then using these things. We define a मतलब Python implementation तो similar से, but yeah, I'll come up with Python implementation tomorrow. I have to make it today. I'm not done it. So it just simply does, error calculate हुआ plus lambda, हमने पैरामीटर डिफाइन किया, कोफिशिएंट्स कैलकुलेट होते हैं, उनका सम इज टेकन आउट एंड इट इज मल्टीप्लाइड एंड दैट इज एडेड टू द एरर. ठीक है. लासो में सिंपली सी मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है अबाउट लासो एंड रिज की व्हेन डू वी यूज लासो, कैन लासो बी यूज्ड फॉर फीचर सिलेक्शन, एंड इफ यस की लासो बैकएंड में क्या करता है कि ये फीचर सिलेक्शन कर पाता है, लाइक एंड एक दो क्वेश्चन ही होते हैं इसके लिए, अदरवाइज इसका सीधा मॉडल फिट करने वाली चीज है. सो उसके लिए बिकॉज इट श्रिंक्स द कोफिशिएंट्स ऑल द वे टू जीरो, पहले जीरो की तरफ ले जाएगा एंड इट मेक्स देम जीरो एज वेल. एंड जो अदर हमारा रिग्रेशन टेक्निक है दैट इज रिज रिग्रेशन, इसमें कोफिशिएंट्स आर नॉट कम अप टू बी जीरो, इसमें जीरो नहीं होते, दे विल बी श्रिंक टुवर्ड्स जीरो बट नॉट जीरो. तो इसको फीचर सिलेक्शन में हम नहीं लेते. ऑल्सो रिज रिग्रेशन जब भी हमारी मल्टीकोलिनियरिटी होती है डेटा में, उसके लिए भी वी यूज रिज रिग्रेशन. लेट्स से मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग, वी हैव हाई मल्टी, अगर मल्टीकोलिनियरिटी है तो हम जनरली क्या करते हैं, हाउ डू वी चेक मल्टीकोलिनियरिटी इन आवर डेटा. हमने अभी लीनियर रिग्रेशन में एक असम्पशन किया था मल्टीकोलिनियरिटी, हाउ डिड वी चेक दैट, VIF स्कोर. ठीक है, VIF स्कोर चेक किया हमने उससे पहले स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं एंड इफ सम कॉलम इज स्टिल हैविंग हाई मल्टीकोलिनियरिटी हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, उस कॉलम को, उस फीचर को. लेकिन अगर आई एम हैविंग हायर कॉलम, मेरे पास n ज्यादा कॉलम्स है व्हिच आर शोइंग मी हाई मल्टीकोलिनियरिटी, तो इन दैट केस वी कैन कम अप विद रिज रिग्रेशन एल्गोरिथम. हम लीनियर रिग्रेशन ना लगा के वी कैन इंपोर्ट रिज रिग्रेशन एंड उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो इस केस में रिज रिग्रेशन वर्क्स व्हेन वी हैव हाईली मल्टीकोलिनियर डेटा, इसको हम L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं. तो जैसे L1 में हम क्या करते थे, वी मल्टीप्लाइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट विद लैम्डा, जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू था ना उसको हमने मल्टीप्लाई किया लैम्डा से. तो रिज में हम क्या करते हैं, वी टेक द स्क्वायर, वी स्क्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट्स, उसको हम लैम्डा से ये RSS वाला पार्ट सेम है. इसको बस हमने जब लासो में हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया था कोफिशिएंट्स का, रिज में हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं एंड लैम्डा इज अगेन मल्टीप्लाइड. सो इट एड्स अ फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर्स. जैसे उसमें हमने किया था ना एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें हम कोफिशिएंट का स्क्वायर डाल देंगे, नॉट जस्ट एब्सोल्यूट, ओनली स्क्वायर ऑफ दोस कोफिशिएंट. सो इट विल do is it will shrink the value of coefficient but does not make them zero.
लासो क्या करेगा, उनको जीरो भी बना देगा, श्रिंक कर देगा। ऑल्सो जिन कोफिशिएंट्स की वैल्यू जीरो हो गई है, इट मींस दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉडल। ठीक है, सो आइडियली सिलेक्टेड फीचर्स आर ओनली टेकन फॉर योर मॉडल बिल्डिंग। लेकिन रिज में अगर 5 कॉलम है तो 5 के 5 रहेंगे, नो कॉलम विल बी एलिमिनेटेड। उनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू, यू नो, ऑल वैल्यूज विल बी श्रिंक्ड, थोड़ा उनकी कम कर दी जाएगी, सो दैट यू नो मॉडल मेरा सही से बने। अगर मेरी मल्टीकोलिनियरिटी है या ओ फिटिंग है, दैट थिंग इज रिमूव्ड, बट फीचर्स विल बी सेम एज दे वर इनिशियली। लासो में बल्कि उल्टा है, इफ लासो में यू नो इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स, 5 से लेके 3 बना देगा, लेकिन रिज में 5 है तो 5 फीचर्स ही रहेंगे। ठीक है, सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट है, हाइयर द अल्फा वैल्यू द मोर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कोफिशिएंट। जैसे इसमें हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर अल्फा वैल्यू इज मोर, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द बायस, बिकॉज हम ज्यादा पेनल्टी ऐड कर रहे हैं। as I'm again saying alpha, as lambda increase, you know, the more coefficients are said to be eliminated because we're adding much more penalty to it. So similar thing is here, the more lambda we increase, the more penalty, because I've written alpha here. So higher the value of lambda, the more restrictions we are imposing on the coefficients, and उतना ही हमारे coefficients will shrink to zero. ठीक है, low value of alpha means we are, you know, we are barely just, जैसे लासो में था, less value तो हम we are not imposing that much of restrictions, हम coefficients को ज्यादा rescale नहीं कर रहे हैं, we are not shrinking them. Similarly here, low value of lambda, sorry मैंने बहुत जगह lambda alpha को confuse किया, because when you see lambda and alpha, people are using kabhi lambda kabhi alpha, so I've gotten a mix and match of both. You can use either alpha or lambda. मेरी सभी पूरी स्लाइड में lambda is here, so lambda word. Generally lambda होता है, alpha is not there, lambda is used. When you see the formula on official, that lambda is there. ठीक है, so lower value of lambda, it means, you know, we are not allowing much more shrinkage of the coefficients. So zero, it won't shrink the coefficients much more. So it solves the problem of multicollinearity. Okay, and again alpha here, oh my god. So the magnitude of lambda will decide, you know, कि जितना मैं lambda दूंगी, because lambda से क्या होगा, अगर मेरा lambda high है तो obviously the sum of magnitudes of coefficient जो square होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, अगर lambda कम है तो वो value भी कम हो जाएगी. So similarly lambda feature is important because उस according the penalty is identified and it can range from 0 to infinity. Higher punishment, higher value of lambda, it means more the value this is. Square है, ऊपर से you know we are multiplying it with a bigger value, more penalty term will be added to it. So उतने ही आपके coefficients ज्यादा shrink होंगे. जितना कम लोगे, lambda 0 लोगे, तो you know this term will be completely 0. तो जो ये मेरा regular है, that will be same as linear regression. So lambda parameter controls the penalty of your shrinkage of your coefficients. थोड़ा और समझ में आया या अभी भी नहीं आया? लाइक थोड़ा थोड़ा आया, कुछ थोड़ा और क्लियर हुआ? See what I'll do is अभी I'll try to come up with more of the graph जिसमें I can show you the difference. अभी I've not done the coding part, so I'll try to introduce graph into that, or I'll put them into this PPT. I'll increase this, I'll put more slides into here. थोड़ा मैं इसको कल और समझाने की कोशिश करूंगी with graphs, so that जो थोड़ा थोड़ा आ जाए कल वो पूरा से आ जाए समझ में. Also tomorrow I'll also will try to finish this. हो गया very good, नहीं हुआ तो we'll complete it, and then next class में we're left out with logistic regression, and then we'll do that. I'm not sharing this slide. Let me make it थोड़ा this is still incomplete because इसमें theory part है, मैंने इसमें ग्राफ ज्यादा नहीं डाले हैं, तभी थोड़ा ज्यादा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ग्राफ से अगर वो देगी, I try to make it much more self-explanatory. Then I'll share with you, and tomorrow we'll do the coding part of this one. Also meanwhile
आज आपके लिए you have to do the knife based code. I'll share the data with you and you have to implement knife based. लासो रिज हम कल करेंगे, आज के लिए आप knife based करो. क्लियर? इसमें कंफ्यूजन होंगे, आई नो, थोड़ा कम, मतलब थोड़ा सा ब्लरी है. विल डू इट अगेन टुमारो, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सो मीनवाइल नाइफ बेस हमारा हो गया है. उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ठीक है. सो I'll see the knife based code tomorrow and we'll also do this lasso and ridge. We'll continue with the same and try to get a much more clear picture of it. ठीक है. So आज के लिए thank you so much. Just winding up our session today. ठीक है. So thank you so much. See you tomorrow again. कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना. हाँ जी, अच्छा, आई शेयर दैट एग्जाम्पल फाइल. एग्जाम्पल ही है और तुम वही एग्जाम्पल की बात करोगे ना. चल, हाँ जी, आई शेयर इट राइट अवे. ठीक है. ऑल्सो आई शेयर अ डेटा सेट विद इन एन आवर और 2, तो उस पर आपको नाइफ बेस करना है. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप उस पर लगा लेना. ठीक है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू टुमारो अगेन. ओके. सो आलोक सर, वी आर डन विद टुडेज सेशन. Very fine, Sujata. Thanks for being with us. Okay, thank you guys. ओके. See you tomorrow. Same time. Excuse me, sir. Hello. हाँ जी. Yes, Rohit. Sir, yes, sir. Sir, I'm asking about the videos. So जो session हुआ है इस month के, वो हाँ जी. YouTube पे कब upload होंगे? वो अपलोडेड है. नो सर, मेरे को अभी मिले नहीं है वो. YouTube मैंने सर्च करा था तो इस month से मेरे को कुछ मिला नहीं है. मतलब रोहित, it is लास्ट happening. मंथ स्टार्टिंग सेशन 6 बताता हूँ. It is happening because ये वीडियोस इस तरह से पब्लिक नहीं है. They are shared to particular mail IDs for Ematicus students only. तो आपका email ID उसमें उस लिस्ट में ऐड नहीं होगा. I will suggest you either contact Damini or maybe Karan will be the better person. So Karan looks after all. नो सर, व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर हुआ था ना, मैंने उससे ओपन करा था, तो उसमें भी मतलब 6 जून से शायद वीडियोस नहीं है उसमें. किसी और को भी ये प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट थिंक सो. वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं टाइम टू टाइम. इट इज जस्ट हैपनिंग रोहित बिकॉज वो आपकी ईमेल आईडी ऐड नहीं है उसमें. वो वीडियो हर किसी को विजिबल नहीं होगा. जिनके मेल आईडीज ऑथराइज्ड हैं उन्हीं को विजिबल होगा. तो आपका शायद मेल आईडी ऐड नहीं होगा उसमें. बट सर, जून से पहले की वीडियोस मेरे को अवेलेबल हो रही हैं, मेरे को शो हो रही हैं. कैन समबडी एल्स कंफर्म? इज देयर एनीबॉडी देयर? आई डोंट थिंक. भागने की बहुत जल्दी रहती है. दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट. हम भी रोहित, देन गिव मी सम टाइम. आई विल कनेक्ट विद करण. ठीक है, मैं बताता हूँ. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. बाय बाय. साइनिंग ऑफ.